So minimum number of matches means winner should not play again, right? If winner plays again, winner should not play again. Then we can have minimum number of matches. This is the thinking approach of this question. So all of you now, try to enjoy the class and try to think in class. We don't have to just listen. We have to think. See, how do you learn anything? Suppose you have to learn to ride a cycle. How do you learn to ride a cycle? Can you read a manual and ride a cycle? Can you read a manual and ride a cycle? Can you swim after reading some books? You have to. Can you build muscles just by reading book? Never. Never. So you have to. How do you learn anything? You learn anything by practicing it, by doing it. So how do you become more intelligent? How your mind is also a muscle. Brain is also a muscle. So with time you have to think a lot. More you think, more your mind will grow. So just don't have any botheration of getting the answer right. You have to enjoy thinking. That is what is required in the classes. Okay, so today you are going to learn many things, but so you don't have any kind of pre-thinking in mind, and don't judge anything. You just enjoy learning. So what I am saying is, winner should not play the match again. So now let us say we have 128 players. So how many matches will happen first? Minimum 64. 64 matches. So how many winners are there now after 64 matches? 32. 64 matches are there. So how many winners are there? 32. 64 winners, right? If you will have 64 matches, you will have 64 winners. Yes or no? Yes. Then how many matches will be played more? 32 more matches has to be played. So again 32 winners, 16 more matches, 8 winners, 8 matches, 4 winners are left. These are the winners. How many winners are there? Then 4 more matches, 2 winners. four winners. Yes, someone is yeah. So when we have 64 matches, we have 64 winners. 64 matches, then 32 winners, no? Sir, in one match, how both can win? Yeah, in one match, one will win. So in 64 matches, how many will win? 32. 32. 64. 64 will win, right? Then 32 match, 32 will win. Yes. 16 will win, 8 will win, 4 will win, then 2 will win, then one more match. So total is how many matches? 127 matches are required.
So now you can think in a different way. If there are 128 players, it doesn't matter who wins. Suppose player 1 wins the first match, he plays with player 2 and wins it. Then this first player wins with the third player. This first player wins with the fourth player. So how many matches he will play total? 64. No, total how many players are there? 127. He is one player and 127 more players are there. So how many matches he needs to win? 127. 127. Thinking approach is same. Now suppose I think, अगर मैं ऐसे सोचता हूँ, for one player to be best, how much player should lose? How many players should lose? 127. 127. So different ways of thinking are there. हर आदमी अलग तरीके से सोच सकता है, पर अप्रोच सेम है कि winner will not play again. This is the crux of the question. You get the answer 127 when you think in different ways. So what is important here is every one of you might think differently, but approach has to be same. So in maths, when we study mathematics, जब हम maths पढ़ते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे 2 raised to power 3 square. So some people might write it as 2 raised to power 9 and some people think it is like 2 raised to power 3 whole square and this becomes 2 raised to power 6. अगर ब्रैकेट है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ब्रैकेट है तो हम लोग 2 raised to power 6 लिखेंगे, और ब्रैकेट नहीं है तो we will go top to bottom. 2 raised to power 9, this is correct. तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं मैथमेटिक्स के अंदर which needs to be very clear to us. And yeah, I am muting some of you. आपकी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है. ABC XYZ आपकी बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है. So you know, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछिए. एंड आई रिक्वेस्ट कि भाई आप एक सिंसियरिटी रखिए, सिंसियरिटी रखिए. एंड आवर पर्पस हेयर इज कि भाई हम लोग आप जैसे अच्छे बच्चों की तरफ रीच आउट करें और नॉलेज बढ़ाएं. अगर आपका कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो इट इज द बेस्ट थिंग दैट टीचर कैन एक्सपीरियंस. तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए. सो ऐसी कंफ्यूजन वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें से कुछ बेसिक्स आज हम डिस्कस करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा x minus 1 is 0. So all of you know x is 1. मतलब x की एक वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. There is only one value when there is an equation. But when I write x greater than 1, ये inequality है. This is not an equation. This is an inequality. और inequality में बहुत सी वैल्यूज ऑफ x हो सकती हैं जो इसको सेटिस्फाई करें. इसका आंसर क्या होगा? x belongs to 1 to infinity और x is greater than 1. This itself is the answer. x belongs to 1 to infinity. ये सारी वैल्यू ले सकता है जब भी x 1 से बड़ा है. इसमें 1.1 भी है, 1.2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 10 भी है. All the values which are greater than 1. This is the way of writing answer. अगर क्वेश्चन है x greater than equal to 1 तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे 1 to infinity. This bracket will change. This bracket means closed bracket. Closed bracket. मतलब जो वैल्यू यहाँ लिखी है 1 वो भी पार्ट ऑफ द आंसर है. 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. और अगर ओपन ब्रैकेट है ऐसा वाला तो 1 इंक्लूडेड नहीं है. 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, तो 1 इंक्लूडेड नहीं है. दिस इज ओपन ब्रैकेट. इट इज रिटन लाइक दिस. इंफिनिटी इज ऑलवेज ओपन.
अगर किसी को कोई भी पार्ट समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकता है दोबारा, या चैट में लिखें। चैट में आप लिख सकते हो कि आई हैव नॉट गॉट इट, प्लीज रिपीट, आई विल रिपीट। See, x greater than 1, it is not 2 to infinity. Samihan is asking, it should be 2 to infinity. When x is greater than 1, what about 1.1? This is also satisfying. This is less than 2. What about 1.2? So there are many numbers between 1 and 2 which you will miss. So answer should be 1 to infinity. 1 is open, 1 is not included. सपोज मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 0, तो आंसर क्या होगा इसका? 1. Any other answers? Someone is saying 1. +1 और -1. Very good. यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, इसको हम फैक्टराइज करेंगे. So this becomes x minus 1 into x plus 1 is 0. So either this is 0 or this is 0. Any one could be 0. So x is 1 or minus 1. There are two values. It's a degree 2 equation. Two values will be there. So how we will write the answer? Minus 1 and 1. Flower bracket. This bracket represents only the values returned. Only the values returned is the answer. In between, if there are any numbers, that is not the answer. Like 1.5 minus 0 is not the answer here. जे काम करतात ना त्यांच्यात आपण मिस्टेक होते, जे झोपून राहतात त्यांच्या आपण मिस्टेक होत नाही. तसं नाही, तुला सांगतो, म्हणजे जे काम करतात ना त्याच्यात आपण मिस्टेक होत असते. तुझं बसून राहिला ना की आपण मिस्टेकच काय होणार नाही. आता बघते जरा बरोबर लागलं म्हणजे माझा. Deepankar, please mute yourself. Is it clear? Open bracket, close bracket and flower bracket. Is it clear to you? If it is not clear, please write no in chat box. Chat box open है. अरे तू लहान आहे म्हणून सांगतो, ऐकतो म्हणून. किती ऐकत नाही म्हणून सांगत नाही. काय? Yeah, Obi, what you want me to repeat? Please tell me. बघा ते बरोबर आहे. काय? नाही, सिंपल बेसिक काय म्हणतात. त्याने एक सांगितलं मला काय. Okay, I am repeating. Plus, but I would request to listen carefully, so that we can utilize more time. So there are three ways of writing the answer. One is open bracket, other is close bracket, a third is flower bracket. अगर मैं आंसर लिखता हूँ x belongs to minus और x belongs to 1 to infinite, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ x हैं? सारी वैल्यूज जो भी 1 से बड़ी है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा x ग्रेटर देन 1, इसका आंसर होगा 1 से इंफिनिटी, पर 1 जो है नहीं ले सकता है x. अगर क्वेश्चन होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? 1 टू इनफाइनाइट, जिसमें 1 भी शामिल है. इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये जो वैल्यू है वो भी एक्सेप्टेड है. अगर हमारा आंसर आता है एक्सिस प्लस माइनस 1, तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे -1 और 1. ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है, बीच वाली कोई भी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है. दर्शन, मैं मराठी नहीं जानता, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो मैं हिंदी या इंग्लिश बोल सकता हूँ. आपको
आपको हिंदी या इंग्लिश मालूम है या नहीं? आमचा होतो कसं सो x की वैल्यू होती है +-1, तब हम आंसर लिखेंगे ऐसे फ्लावर ब्रैकेट में। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं x-1 इंटू x-2 इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या होगा? अब बताइए मुझे। मध्ये ऍडमिशन घे ना, मैं त्याला जॉईन करते हो का? यस ओंकार, यू आर राइट, 1 और 2। फिर इसको कैसे लिखेंगे आंसर को? या मैनी पीपल आर राइटिंग मृणाल 1, 2, दिस इज राइट आंसर। इसको कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे ये बताइए। या वेरी गुड, या एवरीवन इज गेटिंग 1 and 2। इसमें आंसर कैसे लिखेंगे हम? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट? फ्लावर ब्रैकेट, वेरी गुड। 1 and 2 बिकॉज बीच में जो भी वैल्यूज हैं लाइक 1.5 ऐसी कोई भी वैल्यू, ये उसका आंसर नहीं होगा। ओनली 1, x कैन बी ओनली 1 और ओनली 2। तो आंसर हम लिखेंगे फ्लावर ब्रैकेट में, x इज 1 to 2। अच्छा अब बताइए, अगर मैंने ऐसे लिखा x-1 लेस देन इक्वल टू 0, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? हाँ, कोई बता सकता है? जिसको आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया वो भी सोच के बताएं। करने से चीजें आती हैं, यू नो, वी हैव टू प्रैक्टिस, केवल सुनना नहीं है पैसिवली। या धीरज, x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको लिखेंगे कैसे हम ब्रैकेट फॉर्म में? -∞ to 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा लगाऊं मैं, ओपन या क्लोज्ड? -∞ पे ओपन क्लोज। infinity is always open, so it will be open because infinity कोई नंबर नहीं है, it represents all the numbers which are towards negative side। अब 1 की तरफ कौन सा ब्रैकेट आएगा ये बताइए, क्लोज या ओपन? क्लोज। क्लोज्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। या वैष्णवी 1 to -∞ नहीं बोलते, पहले बोलते हैं वो वाला नंबर जो छोटा है, तो -∞ to 1 बोलेंगे, ठीक है ना? हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते हैं 2 to 1, हम बोलते हैं 1 to 2। जीरो एक वैल्यू है, -∞ to 1 की सारी वैल्यूज लेंगे, ठीक है? धीरज आपने बताया 0, सो 0 इज नॉट द ओनली आंसर। सभी वैल्यूज -∞ to 1। मैंने क्या बताया, जब इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी में एक वैल्यू नहीं होती, एक सेट होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स का सेट है, तो ऐसे आंसर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा x-3 लेस देन 1, इसका आंसर बताइए मुझे। कैसे लिखना है ये बताना है आपको सोच के, ठीक है?
माइनस इंफिनिटी टू 3, अच्छा माइनस इंफिनिटी टू 4, ओके, माइनस इंफिनिटी टू 4 सही है। हाँ, धीरज आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 0 नहीं है 1 है, देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, 0 की जगह मैंने 1 लिखा, तो आपको सॉल्व करना है ना इसको, x लेस देन 4 हो गया, सो माइनस इंफिनिटी टू 4। अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा या क्लोज ब्रैकेट आएगा? क्लोज। ओपन आएगा, क्योंकि 4 नहीं है, 4 इज नॉट द आंसर, 4 से छोटी वैल्यूज हैं, इक्वलिटी नहीं है ना यहाँ पे, देयर इज नो इक्वल साइन हियर, सो इट कैन बी लेस देन 4 बट नॉट 4, 4 नहीं हो सकता, सो ये आंसर होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4। ओपन, वेरी गुड, यस। धीरज आपको समझ में आया कि ये 4 ओपन क्यों है, क्लोज नहीं है? ओके, गुड। अभी यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी पूछ ले, क्योंकि क्या है, चीजें हम थोड़ा सा एडवांस करते जाएंगे धीरे धीरे। अगर डाउट है तो वो टाइम पे पूछना है आपको, ताकि आपको इजी हो। किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो वो प्लीज चैट में लिखिए अभी। या सोनाक्षी, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर डाउट। Please tell me what is your doubt or write me in chat. या आपने हैंड रेज किया था सोनाक्षी, प्लीज बताइए आपका क्या डाउट है। What part should I repeat? ठीक है, आप बताइए। या श्रुतिका, व्हाट इज योर डाउट? श्रुतिका, व्हाट इज योर डाउट? यू हैव रेज योर हैंड। आपका क्या डाउट है श्रुतिका? आप लोग नहीं, आप लोग बताएंगे तो फिर मैं बता सकता हूँ। ठीक है, आप अलग से भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, चैटिंग पे, और अलग से भी टाइम भी ले सकते हैं। अच्छा, अभी मैं ऐसे लिखता हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। Yeah, some people are understanding nicely. Yeah, Dheeraj has also understood it finally. Very good. Very good. Very good. Excellent. Yeah, so everyone has got it. Answer is 3 or minus 2. So answer, we will write flower bracket here, because these are the only two values which we are taking. Excellent. Yes, most of you are getting it. Very good. जिसको नहीं आया वो प्लीज बताइए कि I didn't get it. Okay. Good. अब सबसे मजेदार बात ये बताइए कि अगर मैं लिखता हूं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2
या फिर इसको थोड़ा सा सिंपल और कर देता हूँ, x-4 ग्रेटर देन 0। अगर मैथ्स में हम जब पढ़ रहे हैं तो ऐसे बहुत बार आएगा, x-3 इंटू x-4 ग्रेटर देन 0, तो उसका आंसर क्या होगा? ये सोचिए इसके बारे में, थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। What values of x will satisfy this? x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? Different answers I am getting. 3, 4, infinity, 5, 1. Okay. Yeah, Sonakshi, please tell me what is your doubt? या फ्लावर ब्रैकेट मतलब करली ब्रैकेट सेम चीज होती है। अच्छा ये बताओ, क्या x5 अगर मैं लेता हूं तो विल इट सेटिस्फाई? एक्सीलेंट वैष्णवी, एक्सीलेंट। बट 4 इज ओपन, 3 इज ओपन, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, बाकी लोगों से मैं बात करता हूं। अगर x की वैल्यू 5 है तो क्या 5 एक सॉल्यूशन है या नहीं, इतना बताइए सोच के। हाँ, yes, 5 minus 3 is 2 and 5 minus 4 is 1, so it is satisfying. Equation 2 है, right? 2 is greater than 0, it is true. So 5 एक सॉल्यूशन है। हाँ, 5 एक सॉल्यूशन है। अगर मैं 6 लेता हूं वो भी एक सॉल्यूशन है, राइट? यस। Yes. So any value which is greater than 4, अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं जो 4 से बड़ी है, कोई भी वैल्यू 4 से बड़ी है, तो ये फैक्टर तो पॉजिटिव होगा ना? x-4 पॉजिटिव होगा या नहीं? Yes, right? Any value of x greater than 4, this will be positive. This will also be positive. Any value greater than 4, both are positive. Huh? Yes or no? So x की सारी वैल्यू 4 से जो बड़ी है उसमें हमारा एक्सप्रेशन ये पॉजिटिव ही होगा, ये सब पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू मैं x की लेता हूं, अगर x की वैल्यू 4 से छोटी हुई और 3 से बड़ी हुई, मतलब कोई भी वैल्यू यहां पे लिया, जैसे फॉर एग्जांपल 3.5, तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, प्लीज बताइए। या आपको थोड़ा इंटरेक्शन करना होगा तो मुझे पता लगेगा। नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा अगर x की वैल्यू 4 से छोटी है, 3 से 4 के बीच में है, ये नेगेटिव होगा। और ये चीज क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 3 से 4 के बीच में ले रहे हैं ना, तो x-3 पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो दिस विल नॉट सेटिस्फाई।
कोई भी वैल्यू 3 से 4 के बीच में लेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट? अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं 3 से कम, 3 से छोटी कोई भी वैल्यू है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे इस तरह से मतलब एक साइन बनाऊं तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब -∞ to 3 और 4 to ∞, इन दोनों इंटरवल में ये पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव है। सो ये आंसर होगा। ये समझ में आया या नहीं? Yes. आणि विवा फाउंडेशन आयोजित सकारात्मक विचारांची काव्यमाला I will repeat it also with one more example. पाठवलेली कविता आपल्या नावासह आमच्या फेसबुक मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज ऐसा सिंपल एग्जांपल है x-2 into x-6 इज ग्रेटर देन 0। इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा मैंने, तो आप इसको कोशिश करिए सॉल्व करने की, देन आई विल डिस्कस। Okay. कितने लोग सोच रहे हैं और कितने लोग मूवी की तरह देख रहे हैं? टू टू इंफिनिटी, ओके। सम पीपल आर राइटिंग 2 और 6। अच्छा ठीक है, आंसर गलत आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर आपको सोचना जरूर है। 2-3 क्वेश्चन के बाद आंसर आ जाएगा, पर सोचोगे नहीं तो कभी नहीं आएगा। यस अथर्व, वेरी गुड, बट वो क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए या ओपन ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। इक्वलिटी है ना उसमें, इक्वलिटी लगा हुआ है। x2 भी तो हो सकता है। When x is 2, this is becoming 0. This is right. This equation is correct. 0 is also equal to 0. Okay. Yes. Yeah. So it will be close bracket. Very good. Some of you have got it. 2 और 6 दो वैल्यूज हैं जहां पे ये 0 होता है। सो अभी मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए जिसको समझ में नहीं आया। अगर x 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो फिर क्या होगा आप बताइए? विल इट बी पॉजिटिव? Yes, it will be positive when x is greater than 6, and this is of course positive. So 6 से जो भी बड़ी वैल्यू है उस समय ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। Yes. ठीक है ना? और अगर 6 और 2 के बीच में कोई वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल हम 5 लेते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव रहा, तो क्या कंप्लीट इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो पाएगी? No, बिकॉज ये नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 0 हो जाएगा यहाँ पे। और जब x लेस देन 2 है तो ये भी नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव हुआ, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कुछ भी वैल्यू लेकर देख सकते हैं। सपोज 0 लिया हमने, x अगर 0 है तो क्या हो जाएगा? -2 इंटू -6,
तो पॉजिटिव हो गया, विच इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो इसको मैं ऐसे अगर बनाता हूँ तो यहाँ पे कहाँ पे पॉजिटिव है ये, माइनस इंफिनिटी से -∞ से 2 और फिर 6 to infinity। 6 to infinity। ओपन ब्रैकेट रहेगा या क्लोज? Close. क्लोज, बिकॉज इक्वालिटी है। तो ये इसका आंसर होगा। ये भी करना होता है। जिसको समझ में अभी भी नहीं आया हो, प्लीज राइट नो इन द चैट बॉक्स। या दीप, ओके, ABCXYZ। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने लिखा x-4 इंटू x-8 लेस देन 0। वीडियो चल रहा है। या अब जिसको समझ में नहीं आया वो ट्राई करो सॉल्व करने का इसको। ट्राई योरसेल्फ, देन आई विल टेल यू। Try to do it first, think about it, then I will discuss. Yadeep, can you tell me आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? Yeah, many of you have got it. Those who have not got, I am asking. Deep Parab, can you tell me please? Infinity to 4. Yes, that is a part of the answer. In 8 to infinity. Very good. Excellent. Very good, Deep. You have understood it. Yes. Correct. Sir, हाँ, इसमें क्या क्या पॉइंट मेरे को लिखने चाहिए बताइए। हाँ, 4, 8. तो वही मेथड है। अगर 8 से बड़ा कोई भी वैल्यू हम लेते हैं, x की कोई भी वैल्यू आप चूज कर लीजिए 8 से बड़ी, जैसे 9 किया। अगर x 9 है तो क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है? Yes. सो मतलब क्या है कि 8 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। Yes. ये फैक्टर दोनों पॉजिटिव है। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे हम और ऐसे ऐसे बना देंगे, ये पॉजिटिव है।
फिर जब 8 से कम है तो ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, तो प्रोडक्ट का क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ठीक है। और 4 से जब छोटा है तो दोनों नेगेटिव है। यस। x जब भी 4 से छोटा है तो दोनों नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। अब हमें आंसर क्या लिखना है, कब ये नेगेटिव है। यस। तो आंसर क्या हुआ, इस ग्राफ को देख के बताओ आंसर क्या हुआ। 4 to 8, दिस इज द आंसर। यस, वेरी गुड सोनाक्षी, यू अंडरस्टूड। आपको समझ में आया? यस। तो मैथ्स में क्या है, बहुत बार ऐसा इक्वेशन आएगा, जब हम आगे पढ़ाई करेंगे तो बहुत बार ऐसी इक्वेशन आएगी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखना है। अभी मैं क्या थोड़े क्वेश्चन टफ कर सकता हूँ? आर यू एंजॉइंग? यस। तो अभी आप इसको सॉल्व कीजिए, x² - 4 < > 0, इसको सॉल्व करो पहले। या गुड 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 गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट, सो आई एम डिस्कसिंग इट। देखिए, a² - b² क्या होता है? ये सबको पता है? जिसको नहीं पता वो बता दे कि मुझे नहीं पता। सो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, x² - 2², सो x - 2 × x + 2। So you can check from the graph, answer is -2 to 2. Any doubt, anyone? Yeah, Sonakshi. टेल मी, सोनाक्षी बताइए आपका क्या डाउट है?
अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं कैसे आंसर करूंगा आपके डाउट? और कोई जिसको समझ में नहीं आया? ओके गुड। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ क्विज फॉर यू। जस्ट टेल मी नेम ऑफ एनी 10 थिंग्स विच कम्स टू योर माइंड। कोई भी 10 चीजों का नाम बताइए। आवाज नहीं है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? Yes. अच्छा ठीक है, एक एक्सरसाइज करते हैं। आप कोई भी 10 चीजों का नाम बताइए मुझे, कोई भी 10 चीजें। जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं दिमाग में कुछ भी आ रहा है। Yes, sir. जैसे मैं कुछ भी दिमाग में लिख रहा हूँ, चटनी। फिर मैंने Bread. हाँ Bread. स्केटबोर्ड, ठीक है। Bread. ब्रेड आ गया, ब्रेड। Earphone. ईयरफोन, Pen. Cheese. Pen. ईयरफोन, Car. Books. पेन, पेन, Books. पेन, बुक्स, हाँ iPhone. पेन, ओके। और कोई? iPhone. आईफोन। और कुछ? एग्जाम, Teachers. हाँ टीचर। ठीक है, सो एक्सरसाइज ये है कि आपको 1 मिनट में, यू हैव 1 मिनट, यू लर्न ऑल ऑफ इट। देखते हैं कौन कौन याद कर सकता है 1 मिनट में। प्लीज डोंट राइट इट, बी ऑनेस्ट। आपको लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। 1 मिनट में सबको याद कर लेना है ये। Nehal, please mute yourself. You have 1 minute, please learn it. मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। 5वें नंबर पे क्या है, 7th नंबर पे क्या है। आपके पास 1 मिनट है। आई एम वेटिंग। Have you learned it? Can you tell me what is at number 3? Bread. Bread. What is at number 7? Friend. आपने लिखा है क्या? iPhone. Friend. If you have written, you are disqualified. Phone. iPhone. You have disqualified if you have written it. What is at number 9? Exam. Okay. What is at number 4? Earphone. Okay, good. So I am telling you one technique which will help you. This technique is called mnemonics. To learn, it is for short-term memory basically. For short-term memory, you know, if you want to remember few things. I will discuss more such techniques and tricks when the course will start. So today I am just telling you as a gift. So just remember these 10 things.
विच आर वेरी इजी टू रिमेंबर। ये 10 चीजों को याद रखिए जो कि बहुत इजी है। 1 bun, 2 shoe, 3 tree, बिकॉज ये एक राइम कर रहा है। 1 bun, 2 shoe, 3 tree, 4 door। ये 10 चीजों को आप याद कर लीजिए एक बार, बहुत इजी है इसको याद करना। 5 hive, 6 stick, 7 heaven, 8 date, 9 wine and 10 hen। इसको जल्दी से याद कर लीजिए। बन, बन मतलब क्या होता है? बंस होते हैं ना, ब्रेड के बंस, ये ब्रेड बंस। 2 shoe everyone knows, 3 door you know, hive means like bee hive, बीज जो हाइव बनाती है, मधुमक्खी का छत्ता। 6 stick, 7 heaven, 8 date, 9 wine, 10। ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए। ये आपका मास्टर वो है लाइन, मास्टर 10 थिंग्स। If you have learned it, please type yes in chat Yes. box. Okay. Yes. आप इन 10 चीजों को एक बार याद कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको टेक्निक, एक टेक्निक बता रहा हूँ। सो इसमें आप 10 चीजों को याद कर लीजिए, लाइक 1 bun, 2 shoe, 3 tree, 4 door, 5 hive, 6 stick, 7 heaven, 8 date, 9 wine and 10 hen। ये आपकी मास्टर लिस्ट है। ओके, सबने याद कर लिया। अब क्या करना है, कोई भी 10 आइटम आपको मिलते हैं, जैसे मान लो ये 10 चीजें हैं आपके पास, तो इसमें क्या करना है, जैसे 1 नंबर पे है हमारा बन, तो बन से चटनी को एसोसिएट करना है। एसोसिएशन में थोड़ा इमेजिनेशन होना चाहिए, यू नो, इमेजिनेशन। यू कैन यूज कलर, इट कैन बी, यू नो, वियर्ड इमेजिनेशन ऑल्सो। कुछ भी कलर डिफरेंट सोचिए और उसमें मूवमेंट को इंक्लूड कीजिए। बेसिकली आपको बन से एसोसिएट करना है चटनी को। तो आप सोच सकते हैं जैसे बहुत बड़ा बन है, उसमें बहुत सारी हरी चटनी बनी हुई है, उसमें आपने लाल चटनी भी डाल दी, तो बन मीन्स चटनी, उसका एसोसिएशन हो जाना है। 2 इज शूज। अब शूज को आप स्केट बोर्ड से एसोसिएट कर दीजिए। अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे आपके शूज हैं वो स्केट बोर्ड से बंध गए हैं, जब आप स्केट बोर्ड के साथ अपने शूज को रखते हैं अलमारी में, ऐसे 2-3 चीजें कुछ भी इमेजिन कीजिए शूज के साथ स्केट बोर्ड को। अब घर के बाहर एक पेड़ है और पेड़ में क्या लटका हुआ है, क्या उगता है पेड़ में? आपके पेड़ में क्या उगता है? ब्रेड। ब्रेड का पेड़ है। या जब भी पेड़ सोचते हैं तो उसके ऊपर चढ़ के ब्रेड खाने का मन करता है, ऐसा सोचो। 4 डोर, जैसे ही आपने डोर खोला उसमें बहुत सारे ईयरफोन से बहुत तेज तेज आवाज आ रही है, ईयरफोन। या आपका डोर पे नॉक होता है तो ईयरफोन आपका बजने लगता है। आपको एसोसिएट करना है कुछ भी वियर्ड इमेजिनेशन के साथ, ईयरफोन और डोर को एसोसिएट करना है आपस में। 5 हाइव, मधुमक्खी का छत्ता कहां पे उगा? आपके घर में मधुमक्खी ने कहां पे छत्ता बना लिया? फैन पे। 7 हेवन, जब आप हेवन गए तो क्या कर रहे हो? बुक्स पढ़ रहे हैं। बुक्स पढ़। 8 डेट, ठीक है, किसी डेट पे आप फ्रेंड के साथ जा रहे हैं मूवी में, यू कैन इमेजिन लाइक दिस। 9 वाइन, वाइन के अंदर क्या गिर गया? आईफोन। 10 हैन, जब मुर्गी ने अंडा दिया तो क्या होता है? एग्जाम होता है। या एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, कितनी मुर्गियां थी? मैंने कुछ मिस कर दिया, 5, ये 6 वाला मिस कर दिया, सॉरी मैंने ना, इसको हम 6 बना देते हैं टीचर को। 6 स्टिक, टीचर से अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो क्या पढ़ता है?
Stick. टिक। एक बार आप चाहो तो रिवाइज कर लो जल्दी से, अपने अपने मन में अपने तरीके से जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। उनको चटनी में लगा कर खाया। रिवाइज हो गया? अच्छा, अब मुझे बताइए कि नंबर 3 पे क्या है? ब्रेड, ब्रेड। Bread. नंबर 7 पे क्या है? बुक्स, Books. बुक। नंबर 9 पे क्या है? Exam. iPhone. आईफोन। अब आप कुछ भी इसको ना याद कर सकते हैं, इसको ये आपको ना कम से कम 7 डेज तक या 7 डेज तक याद रहेगा। उसके बाद आपकी नई नई चीजें आ सकती हैं माइंड में। सो दिस इज द टेक्निक कॉल्ड निमोनिक्स टू रिमेम्बर थिंग्स फॉर शॉर्ट टर्म। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, आप बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हैं बहुत इजीली, डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन से, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से, रिवीजन टेक्निक से, रिवीजन टेक्निक से बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं। Did you like it? Yes. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। दोबारा से आ जाते हैं। x minus 1 divided by x minus 2 less than equal to 0. Try to solve it. इसमें कैसे करेंगे? एनी आइडिया? एनीवन? Zero, only zero. Zero is not satisfying. If you put x as 0, you will get minus 1 by minus 2, which is half, which is not less than 0. This is wrong. X is not 0. X 0 नहीं है, वो गलत हो गया। क्या आंसर होना चाहिए इसका? वन और 2। या सोनाक्षी, व्हाट इज योर डाउट? हाँ, 1. x is 1 is one of the solution. अगर x को हमने 1 रखा तो ये क्या हुआ? 0 by minus 1, so 0. तो ये एक सॉल्यूशन है, पर इसके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। सी 1/2 आंसर तब होगा जब x को 0 रखा हमने। हमें पता लगाना है x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसमें ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखिए इसको। फिर से हम वही पॉइंट ले रहे हैं, 1 और 2। 1 और 2 अगर पॉइंट लेते हैं, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। अगर x 2 से बड़ा है, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 2, इफ वी टेक, व्हाट इज इट? पॉजिटिव और नेगेटिव? न्यूमरेटर पॉजिटिव। एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर? आई एम टेकिंग एनी वैल्यू ग्रेटर देन 2,
2 से कोई बड़ी वैल्यू ली, Positive. Positive. ये पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। अब अगर मान लो x को 2 से कम लिया, x को हमने 2 से कम लिया, तो इसका क्या होगा, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, Negative. नेगेटिव, एंड दिस विल रिमेन पॉजिटिव। सो टोटली क्या होगा, ये टोटल Negative. नेगेटिव। और जब x को 1 से कम लिया, Negative. नेगेटिव, एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव। प्रोडक्ट डिवीजन इज Positive. पॉजिटिव, so this will become positive। तो अब आप ये सोच के बताइए कि कौन सी वैल्यूज ऑफ x हम लेने से ये नेगेटिव हो जाता है। Between 1 and 2, right? 1 and 2. 1 and 2, and 2 should be open Yes, because 1 and 2. denominator cannot be 0. Denominator cannot be 0. तो इसका आंसर होगा ये 1 to 2. This is the answer. Any doubt? Huh? Yeah, Sonakshi, tell me what is your doubt? कुछ तो बोलिए। हाँ, मैं रिपीट करता हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें x की अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं दोबारा से दूसरा पेज बना देता हूं, x माइनस 1 बाय x माइनस 2 लेस देन 0, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। आर यू लिसनिंग? या तो इसमें क्या है, ये एक इनइक्वालिटी है, तो कौन सी वैल्यूज x की हम ले सकते हैं जिससे वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो मैंने क्या किया, इसमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है 1 और 2, क्योंकि 2 से बड़ा और 2 से छोटा, ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर x 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 का क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और 2 से छोटा है तो नेगेटिव। तो 2 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ये पूरी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाती है, इसलिए मैंने 2 लिखा और एक 1 लिखा, यहां से 1 लिखा। फिर इसको एनालाइज किया कि पूरा की पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जब x 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, आप x को 3 रखा तो ये पॉजिटिव हो गया 3 माइनस 2। ऐसे ही 3 माइनस 1 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका डिवीजन जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। Yes. तो हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि ये पूरी चीज यहाँ पे पॉजिटिव है, ये ग्राफ से हम एनालाइज कर रहे हैं कि सारे पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। अब x जब 2 से कम हुआ और 1 से बड़ा हुआ, ये केस 2 है ना, ये दूसरा, यहाँ पे भी x हो सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है x। मान लो कोई भी वैल्यू हमने ले ली, सपोज 1.5, तो नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? जब x 1.5 है तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। और ऊपर क्या होगा? Negative. पॉजिटिव होगा, x 1 से तो बड़ा है। तो ये कंप्लीट चीज क्या होगी?
Negative. नेगेटिव। Negative. तो जब भी x Yes. 1 से 2 के बीच में होगा तो ये नेगेटिव होगा, करेक्ट? Yes. Yes. फिर जब x 1 से छोटा हुआ तो ऊपर वाला क्या होगा? Negative. नेगेटिव। Negative. और डिनोमिनेटर क्या होगा? नेगेटिव। तो पूरा चीज क्या हो जाएगा? Negative. Positive. पॉजिटिव। Negative. पॉजिटिव हो गया। Sorry, positive. अब हमें आंसर क्या लिखना है जब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, लेस देन 0 है? Between 1 and 2. तो बिटवीन 1 and 2। और 1 ओपन होगा या क्लोज होगा? Open. 1 क्लोज होगा ना, क्योंकि 0 भी हो सकता है ना पूरी चीज। Yes. तो वो 1 तो क्लोज होगा लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए डिनोमिनेटर ओपन होगा। ये आंसर है। समझ में आ गया? Yes. अब अपना क्वेश्चन ये खुद करना है आपको, जो मैं अगला लिख रहा हूं। Write the solution of this. Try this. Yeah, Om Shri, good. Very good. Shivam, very good. Excellent. Shruti, excellent. But you are all writing the answer for less than 0, I think. When x is, are you able to draw this graph? ये आपने बनाया होगा ग्राफ। तो आपको आंसर लिखना है ग्रेटर देन 0, नॉट लेस देन 0। सो आंसर क्या होगा? कब है ग्रेटर देन 0 ये एक्सप्रेशन? यस, दैट इज द आंसर। वेरी गुड। माइनस इंफिनिटी टू 3 union 8 to infinity. 8 will be open because denominator cannot be 0. Denominator cannot be 0. Very good. Now you are getting it correctly. So next, do this. X minus 1 into x minus 2 into, now I am making 3 factors. Try to solve this. Try this, then we will discuss.
तो अभी इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 1, 2 and 3. There are 3 points. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. There are 3 points, right? तो यहाँ पे क्या होगा? जब x is greater than 3, everything is positive, right? कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज x वैल्यू 4 है, तो ये पॉजिटिव हुआ, हाँ या ना? हाँ. Now, what about this? Is it positive or negative? Positive. Positive. So everything is positive when x is greater than 4. Positive. So complete thing is positive. But x is between 2 and 3, then this will become negative and these two remains positive. So complete product is Negative. negative. Now when x is between 1 and 2, this is negative, but this will be positive. So complete thing is Positive. positive. And then when x is less than 1, this is negative. So you can see like this. Now where is it positive? What is the answer? 1 to 2. Between 1 and 2. And 3 and infinity. 3 and infinity. Very good. This is the answer. Very good. This method is called wavy curve method. Wavy curve method. अभी कोई भी इक्वेशन आएगी तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं. ऐसा इक्वेशन आ गया तो यू कैन राइट द आंसर. We are discussing very basic things. Any doubt, anyone? No. Next, do one more example. Solve it. Okay, very good, very good, very good. Excellent, excellent. Many of you are able to do it. Very good. Nice, nice. Very good, very good, very good. Very good. Very good, very good. That means many of you are listening nicely and understanding the concept. Very nice. Yes, yes, yes. Correct, 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 correct. Okay, so everyone has done it. Still, I will solve it. 4, 7, 9. And when x is very large, it will be positive, then negative, then positive, then negative. And you can check when is it less than 0, minus infinity to 4, and union 7 to 9. Very good. This is the answer. Most of you have done it correctly. 4 will be closed. Murunan, 4 will be closed bracket now.
4 is close bracket. Yes. So don't do mistakes like this. Be alert. Okay, good. So next one. Solve this. Good. Anuja, it is right. Absolutely right. Try this now. Wavy curve you have to do. 3 is not the only answer. It should be the set. X can take many values, not only 3. These are half answers. Again, you have to take 3 numbers, no? 1, 2, and 3. The critical points. The sign of one of the expression changes at these points. So when x is greater than 3, everything is positive. Then negative, positive, negative. Like this, you will draw the graph. So answer is minus infinity to 1, union 2 to 3. 2 is open, 3 is closed. 2, why 2 is open? Denominator cannot be 0. X cannot take the value 2. X 2 नहीं हो सकता, 3 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है. So this is the answer. Yeah, some of you have done correctly. Very good. Many of you have done correctly. Good. बहुत सारे लोगों ने ठीक किया है, कुछ लोगों से थोड़ी थोड़ी गलती हुई है. Any doubt, anyone? कोई ऐसा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दही जम रहा है दिमाग में? सबको समझ में आ रहा है? गुड. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बताइए मुझे. एक क्वेश्चन है आपके लिए. मैं ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूं? बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोगों का दिमाग जो है वो बहुत शार्प हो जाए. जितना हम सोचेंगे उतना दिमाग शार्प होता रहता है. अभी तक क्या है कि कोई भी टीचर पढ़ाता है, हम केवल सुनते हैं, सुनने से हमें समझ में आता है, कभी नहीं आता, पर सोचना बहुत जरूरी है. बताइए, 8 बॉल है बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसी दिखने वाली 8 बॉल है, बट वन ऑफ देम इज हैवियर, one of them is heavy than the rest. अच्छा, चलिए आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूं. पहले 8 की जगह 6 बॉल है, 6 बॉल है, और आपके पास एक कंपेयरिंग वेट है. कंपेयरिंग मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ वेट डालेंगे और यहाँ पे कुछ वेट डालेंगे तो one of them will go down, whichever is heavier. You can use this pen 2 times.
and find out which of them is heavier. Try this. क्वेश्चन समझ में आ गया? Sir, हाँ, first we take two balls. Two balls means 4 balls. If they are equal, yeah, then good. Who is this? Atharva. Yeah, Atharva, let others think for 2 minutes, then you tell. Okay. Let everyone think for 2 minutes. Anyone wants to try except Athar? Trying is more important. Getting the answer is not so important initially. कोई है जो ट्राई करना चाहता है? हाँ, ट्राई तो करो, गलत होगा तो होगा, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे सीखेंगे? Anyone wants to try and discuss the solution? Can I tell now? Okay, tell. First, we will take two balls for each one, and Two they balls are each one. each are the 4. If one is going down, then remove from one from each, and then which will be the heavier will go down. We will find out if the both are same. We will take the other two balls, and then which are heavier we can identify. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. पहले हम 2 बॉल रखेंगे. अगर एक नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें गलत है. फिर अगली बार एक रख देंगे इसमें से, तो कोई ना कोई नीचे जाएगा क्योंकि इसमें ही गलत बॉल है. और अगर इन दोनों में से कोई भी नीचे नहीं जाता तो जो बची हुई 2 बॉलें हैं उसमें से हम एक रख सकते हैं क्योंकि गड़बड़ उसमें. करेक्ट? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस अथर्व. अब ये बताओ कि अगर 6 की जगह मैंने 8 बॉल कर दी तब कैसे करेंगे? One of them is heavy. We put three balls first. We have only 2 chance. Only 2 chance. सब रखेंगे फिर. बहुत अच्छा, 3 बॉल रखेंगे. अगर 3 बॉल रखा तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो एक नीचे जाएगा या एक भी नीचे नहीं जाएगा. अगर एक भी नीचे नहीं जाएगा तो गड़बड़ है बची हुई बॉल में. और अगर एक नीचे गया तो क्या करेंगे? तीन बॉल तो एक one we put side and 2 balls ही या एक बॉल रखेंगे फिर. करेक्ट? yes. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. ठीक है, अभी ये बताओ कि हमारे पास रोहन, बात सुन लो यार. रोहन, पानी चला जाएगा. रोहन, Rohan is not there, right? Sohan. ओके, अभी हमारे पास क्या है? देयर आर 6 काउज. 6 गाय हैं हमारे पास. काउज. काउ नंबर 1 kg मिल्क देती है.
काउ नंबर 2 kg मिल्क देती है, काउ नंबर 3 kg, काउ नंबर 4 कितना देगी? 4 kg. फाइव केजी. ऐसे करते करते हमारे पास 36 काउस है, काउ नंबर 36 देगी 36 kg मिल्क. So if a person has 36 cows, how can he distribute 36 cows among 6 sons so that हर बच्चे के पास बराबर गाय हो और बराबर मिल्क हो? Equal cows and equal quantity of milk. हम लोग 36 काउस को कैसे बांट सकते हैं 6 लोगों में, such that सबके पास equal number of cows हो और equal amount of milk? Try this and tell me. Think about it for some time, then I will discuss. Each get 6 cows, but कौन कौन सी काउ? जैसे काउ नंबर बराबर मिल्क भी मिलना है ना. हाँ अथर, should I repeat the question? Yes, I'm solving it. Okay. Wait for only 2 minutes. Okay. Yeah, 111 per child is correct. 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7. No, but then this quantity of milk will be changing. No, we want सबको बराबर बराबर मिल्क मिलना है ना. या बहुत बढ़िया, मिलिंद हैज सॉल्व्ड इट. Excellent.
Very good. See, cow number 1 and cow number 36. Cow number 2 and 35. 3 and 34. So this you can give to one person. Total milk is how much? $37 plus $37 plus $37. This is for one person. Then second person can get what? Second person can get cow number 4 and 33. 33. 5 and 32. 32. 6 and 31. Total milk is also same. Equal number of cows, equal amount of milk. Then person 3 can get 7 and 30. 8 and 29. 9 and 20. Like this we can distribute. Yes. Very good. Yeah, there are many solutions. Sunita Patil has also written right solution. So many solutions are there. This is the basic method of thinking. Very good. Excellent. Total milk is 666. So everyone gets 111. Excellent. So there lies a very important concept of arithmetic progression. So like you, one badge was there and students were making noise. So teacher wrote this question on board. Ashok. Add this. Teacher gave this question on board. So when he was just giving this question, one person replied 5050. So how he did it? Can you tell me? SN formula. Yeah, SN formula is Yes, okay, sir. but how you derive it? Basic fundamental. Arithmetic progression. या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको डिराइव कैसे किया आप? देखो 1 + 100 कितना होता है? 101. फिर उसके बाद एक बढ़ा दो इसमें और एक घटा दो. 99 + 2 कितना होता है? 101. फिर 3 + 98 कितना होता है? 101. कितनी बार आएगा 101? 50 times. So that is 5050. This is the answer. And this is the formula of AP. First term plus last term into n by 2. Sum of n terms. Arithmetic progression. What is arithmetic progression? Progression which is increasing arithmetically. सब में बराबर डिफरेंस है. कोई भी दो टर्म है इसमें 1 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, तो बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सपोज मैं लिखता हूँ 1 + 3 + 5 + 7 and so on up to 100 term. First term is 1. What is second term? 3. 1 + 2. What is third term? 1 + 2 into 2, right? Yes. What is fourth term? 1 + 2 into 3. General nth term is what? First term plus 2 into n minus 1. Nth term is first term plus n minus 1 into common difference. Common difference is 2. What is the difference between any two terms? हर दो टर्म में डिफरेंस कितना है? 2.
तो ये nth टर्म होता है। तो 100 टर्म्स क्या होगी? व्हाट इज 100 टर्म्स? 1 प्लस 99 इंटू 2। 199. 198 into 198 plus 199. 193. 199. 199। So 100 terms 199, ये है 100 terms। So for 100 terms what will be the sum? इसका एडिशन क्या है? The basic 199 plus 1 is 200. Last term plus first term is 200. Then suppose before this you have 197. 197 plus 3 is also 200. How many times this will come? 50. 50 times. So answer is what? 10,000. 10,000. Very good. So this is arithmetic progression. N by 2 into first term plus last term. This is called arithmetic progression. So tell me one more question. If we have 10 chalk box, each box has 10 chalks. Each box has 10 chalks. Every chalk is 1 gram. Every chalk is 1 gram. But one chalk box is defective. And every chalk there is 2 gram. हर chalk 2 gram की है एक box में. So you have a weighing machine. Weighing machine. इसको एक ही बार यूज करना है. You can use it once and find out which box is defective. Try this. Sir, हाँ, one side it will be 6 boxes and a second side 5 boxes. ठीक है. नहीं, If only they are- one. ये weighing machine कंपेयर वाला नहीं है. ये ऐसा नहीं है कंपेयर कर रहे हैं हम दो साइड में. तराजू टाइप नहीं है. मतलब इसको आप डिजिटली आप वेट ले सकते हैं एक ही बार में. Okay. ठीक है. ठीक है, सोचिए फिर से. तो सर हाँ, सर 10 के 10 बॉक्सेस पहले रखकर ठीक टोटल है. वेट निकालेंगे, बाद में एक एक बॉक्स माइनस करेंगे, उसमें से हर बॉक्स के 100 ग्राम माइनस होने चाहिए, सॉरी 10 ग्राम माइनस होने चाहिए. ठीक है. जब 20 ग्राम माइनस होंगे तो निकाला हुआ बॉक्स डिफेक्टिव होगा. ये तो सही है, लेकिन आप इसको एक से ज्यादा बार रीडिंग ले रहे हो ना. आपको अलाउड है एक ही बार, आपको बस मेजरमेंट ले सकते हैं आप. ओके ओके सर, सॉरी. ठीक है. हाँ, नहीं सॉरी नहीं, आपने अच्छा ट्राई किया. आप ट्राई करने से ही आपको बढ़ेगा इंटेलिजेंस. Sir, place 9 boxes. हाँ, 9 boxes place कर. चलो 9 बॉक्स प्लेस किया, वजन आया 100 ग्राम्स. Then other box is defect. नहीं, मान लो कि 100 ग्राम्स आ गया वेट 9 बॉक्स का. तो कौन सा डिफेक्टिव है कैसे पता चलेगा?
गेट 10 वेइंग मशीन वो तो ला सकते हैं हम लोग। अभी हम सोच रहे हैं कि एक ही से कैसे करें, एक ही बार देख के। मैं बताऊं सॉल्यूशन या आप सोचना चाहते हो? देखो, बॉक्स नंबर 1 से एक चौक डाल दो, बॉक्स नंबर 2 से 2 चौक डाल दीजिए, बॉक्स नंबर 3 से 3 चौक्स डाल दीजिए। ऐसे करते करते बॉक्स नंबर 10 से डालिए 10 चौक। टोटल वेट कितना होना चाहिए आइडियली? कितना होना चाहिए आइडियल वेट, अगर सब राइट है, सब 1 ग्राम के हैं तो? 55. 55। अगर बॉक्स नंबर 1 डिफेक्टिव है तो कितना वेट आएगा? 56 आएगा या नहीं? अगर बॉक्स नंबर 2 डिफेक्टिव है तो कितना वेट आएगा? 57। बॉक्स नंबर 3 डिफेक्टिव है तो कितना आएगा? 58। तो जो भी वेट आएगा उससे पता लग जाएगा कि कौन सा बॉक्स डिफेक्टिव है। We are using principle of arithmetic progression here. Is it clear? समझ में आया? Yes. तो आज हमने सीखा, पहला तो ये सीखा कि भाई हमें सोचते रहना है, we have to think a lot. We learn to think by thinking. सेकेंड, हमने सोचा कि मैथ्स में ना टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टूल्स हैं। लाइक हमने आज सीखा वेवी कर्व मेथड। ये एक जनरल टेक्निक है जिससे जो हमें बार बार काम आती रहती है मैथ्स में। अगर ये भी क्लियर नहीं है तो फिर हम कुछ भी कर रहे हैं तो आंसर ही नहीं लिख पाएंगे। थर्ड, हमने स्टार्टिंग की है अगले लेक्चर के लिए, स्टार्टिंग की है। कल हम मतलब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। फोर्थ, हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स भी बीच में सीखेंगे जिससे हम अच्छे से मेमोराइज कर सकें, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू मैनेज अवर टाइम। ठीक है, ये सब चीजों की हम आपको एक्सपर्टाइज देंगे, आपको कॉन्फिडेंस के लिए कि भाई मैं आईआईटी निकाल सकता हूं या नहीं, ये भी क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में। तो जो सोच सकता है आई कैन इज बिगर देन IQ। जो सोच सकता है आई कैन और उसके बाद करता है आई डिड, जो एक्सरसाइज करेगा, प्रॉपरली करता रहेगा, वो अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा उसको कॉलेज जरूर मिलेगा। हिज लाइफ विल चेंज। सो IQ से बड़ा है आई कैन से भी बड़ा है आई डिड। तो ये सब बातें भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और ये हमारा आज का लेक्चर इतना ही है। अगली क्लास में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ वर्कशीट आज की क्लास के लिए भेजूंगा, आप प्रैक्टिस करना वेवी कर्व मेथड के लिए। उसमें अगर कुछ डाउट आएगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं। किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकता है, कोई फीडबैक, सजेशन, ओपिनियन, आपको अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, कुछ भी चीज आपको है तो आप एक फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, if you want to say something you can say. Otherwise I am closing the class. Thank you Atharv, you like the teaching, nice. I also like you. Thank you. Thank you. So I am closing the class now. Okay. Okay, you can leave.